in continuation of the previous lecture, I am moving ahead from the same screen that you were already seeing in last lecture at last point. So we have already discussed what is file pointer, stream, fopen function, modes, all these things, fclose function also. So there is a program and four functions we have discussed to read a character from a file or to write a character to a file. So first of all, if we want to print any character from file on the output screen of C programming compiler, then we have to read that character. To read that character, we have to open that file in read mode. So see here, record.txt named file is opened in read mode. Now if this file exists, then particular connection will be established with FP along with fopen function in read mode. But if that file is not existing, that means absent, we have never created such a file. There is no such file named as record.txt. Then we'll simply abruptly terminate the program using exit, right? Because this is erroneous kind of thing. Because read mode cannot create a file. In place of R, it will write W, then this file will be created also. Okay. So first of all, I have created file pointer FP, then one character variable C. Then if FP is not null, that means file is existing. Then our entire logic will be there, and logic will be to read character by character from file until end of file occurs, and simply printing those read characters, right? In this way. In else part, this else will also start from E with small letter. While one is an infinite loop, F gets CFP. So F gets CFP. FP is the file pointer or stream connecting from that record.txt. So record.txt, from record.txt, one character is read, right, and stored in C. And we'll check whether that stored character or extracted character from the file is end of file or not. If it is not end of file, then this if condition will be failed. So its body, that means next statement break will not run and printers will run. So that character will be printed on screen. Then one important thing is that this fgetC function reads character in a proper sequence, and we don't have to perform any incrementation. Like in general, in while loop, we need three statements: conditional statement for condition, then within the first of all initialization is required, then condition is required, and then within the body we have last statement, updation statement. But there is no updation statement. We don't have to increment this FP anytime. This fgetC function automatically increments. ये अपने आप आगे बढ़ता है. पहला कैरेक्टर रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली अगर उसमें दूसरा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है और वो एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा और उसको निकाल के सी में डाल देगा, कॉपी कर देगा. फिर आप आगे देख सकते हैं और ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा. तो चलें इस प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कंपाइलर पर. Copying that file, I'll just show you. Okay, see screen. Now screen is in front of you. Okay. This file is record.txt opened in read mode. If condition, making program smaller so that entire program can be covered in the screen. Right. Okay. File copy. So from stdlib and stdio.h have been added over here. Even I think program will run without them also, but for the safer side, I have written here these both header files. Okay. So this is the file. If I'll now execute it, then what will happen? Let's see whether my record.txt is existing or not. No. That message has appeared as an output that it cannot open file. What is the meaning of this thing? That means record.txt is not existing. So I have to create record.txt. So let me create record.txt. Okay.
I have written here. This screen is also visible to all of you. Notepad. I'm creating here one more file ABC, suppose RTY, and some random things I have written. Some random things I have written here. Okay, so this is my file and this is my notepad. I'm saving this in the same folder where my program has been saved, and the name is record.txt. Record.txt, and it should be stored within the same folder. Okay, record.txt. Now I have saved that record.txt properly. Now I'll again go to that program and execute it. Right? And now I want to see what will be printed. Still it is not getting it. So let me see whether that file is still existing or not. Record.txt. Record.txt. It is. Let me save it. Let me save this file also. Okay. And I must see where I have saved this program. Save as C underscore programs. Right, within this C first here C underscore programs. Okay. So I must see whether my file is also at the same place. Save as C first here C underscore programs. Okay. Record.txt. So now let me again execute it. Now it is giving me correct output. Maybe it was not saved properly. Now this is my output screen, and you can see this is my file. So everything should be visible to all of you. Program is there, output screen is there, and file is there. So whatever is written in file is printed here, right? And file opened statement is also there because there is no /n. So I must write here /n file open, right? So that it will be written in next line. So now you can see here, this is a program, and this is the notepad. This is notepad, this is program, and this is output. All the things are written in front of you. Right? So in my notepad, first character is A. So fgetc picks that A and copies it into C. And where is EOF? EOF is written after Y because Y is the last character in my file, notepad file, and EOF is automatically attached here just after Y. Right? So when all the characters are read one by one, this break will not run anytime, and all the characters are printed on output screen. Then after Y, EOF will be returned, and EOF will be stored in C. C will have EOF, condition will be successful, and break will run. So while loop will be terminated. Then printf file opened will be printed. Okay. Another way of doing the same thing can be, what can be another way? Another way can be I should get this condition, that's this inside the condition. I'm changing that code, right? Instead of writing this infinite while, I can write here C is equal to f get C. I have written here, right? And that I am storing in a variable is not equal to EOF. Are you getting my point? Now this is not required. This is not required. This is not required. So what I am doing actually, in while loop, I am checking what character is returned by fgetc from fp after reading, and whether that character is same as EOF or not.
If it is not equal to EOF, then I'll print that character, and if it is equal to EOF, condition will be failed and loop will be terminated. Right? So same program is running successfully after these changes. So this is more simple way to represent all these things. This break and all these things are not required anymore. In one line, I can read that character by character from a file. Okay. Even there is one more function. FEOF function. FEOF. This is one more function. And within that, I must pass FP. Right? So whenever end of file will occur, it will return so end of file is actually -1. So whenever this function will run, you can see I can check this function within this code. Even for this end of file function, without getting that code, I can write this. Right? I can write this also. Here, instead of writing this, I can write this. Not of FEOF, FP1, then I'll print. And when there will be an end of file, then loop will be terminated. So this condition is true whenever my FEOF function is not returning end of file. So FEOF function returns function returns EOF, right? It is searching EOF within that FP, character by character. So again, I am executing the same program, right? And I can see whether this output is also same or not. Okay, this is going in opposite direction. Actually, it should be written as get ch must be used. I think so. Get ch must be used, right? Here, get ch has not been used. So that thing get ch must be used because only then character by character can be printed. If get ch is not there, then I cannot print character by character, right? So here I must write here c is equal to f get c and fp. Okay? Right. Let me see what happens here itself. Now it is okay. Because f get c function automatically increments the program counter, or you can say character pointer marker, right? Now it is working correctly. So this is another way, last one way, right? We have three ways to do this. First one was using break in with infinite while loop. Second was using that condition within while loop without using break or without using infinite while loop. And third is the utilization of FEOF. So FEOF function returns end of file. So whenever end of file is not there, I'll go inside. So f get c will get one character. And as soon as f get c will move ahead, so it is actually checking for FP every time whenever f get c is executed.
देखिए एफ गेट सी अपने आप से ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। तो पहले कैरेक्टर पर तो मार्कर ऑलरेडी है क्योंकि आपने रीड मोड में खोला है। तो पहला कैरेक्टर हमारा उस नोट फाइल में क्या था, एबीसी का ए। तो वो तो एफ ई ओ एफ ने जब उसमें गया तो ये तो उसको एंड ऑफ फाइल नहीं मिला, यहाँ ए मिला, इसलिए ये करेक्शन हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर गया, उसने ए कैरेक्टर को सी में रीड कर लिया, प्रिंट कर दिया, और एफ गेट सी आगे बढ़ गया बी पर। ठीक है, अब जो है अगला कैरेक्टर बी हो गया है, जिसको एफ पी रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर आगे बढ़ गया है। ठीक है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, आर टी वाई भी नहीं है, तो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा ये लूप एफ गेट सी आगे बढ़ता रहेगा, लूप के अंदर है। और वाइल लूप के अंदर हर बार नया करेक्टर मिलता रहेगा, वो नॉट वाला कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जब जब एफ गेट सी यहाँ पर ई ओ एफ को रिटर्न करके एफ गेट सी ऐसी पोजीशन में पहुंच गया, लास्ट वाला इसने वाई रीड कर दिया, ठीक है, वाई प्रिंट कर दिया, और एफ गेट सी आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ते ही यहाँ जो वाइल वाली कंडीशन है वहां पर नॉट एफ यू एफ एफ टी में क्या रिटर्न हो जाएगा, एफ ई ओ एफ, सॉरी ई ओ एफ, ये कंडीशन हो जाएगी फेल, क्योंकि एंड ऑफ फाइल मिल गया। ये तब तक ट्रू थी जब तक नॉट एंड ऑफ फाइल मिल रहा हो। एंड ऑफ फाइल मिलते ही ये प्रोग्राम यहाँ पर ये टर्मिनेट कर दिया। ठीक, अब इसी चीज को हम फाइल कॉपी में ले चलते हैं जरा। देखिए फाइल कॉपी कैसे करना है। तो फाइल कॉपी करने के लिए हमें दो फाइल पॉइंटर खोलने पड़ेंगे, एक से फाइल रीड करनी पड़ेगी, दूसरे पे राइट करनी पड़ेगी। तो चाहे आप इससे देख लीजिए या फिर यहाँ से देख लेते हैं नोट से। चलिए इसमें देख लेते हैं इस बार। कंटेंट ऑफ ए फाइल इनटू अनदर फाइल। अब मान लिया एक फाइल हमारी है रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी, ठीक, और दूसरी हमें बनानी है कॉपी डॉट टी एक्स टी के अंदर रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी का डेटा राइट करना है। तो रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी को रीड मोड में खोल रहे हैं, उससे डेटा निकालना है और डालना किसमें है, कॉपी डॉट टी एक्स टी में। ठीक, राइट मोड में। कॉपी डॉट टी एक्स टी में राइट मोड पे डालना है। ठीक है, तो कॉपी डॉट टी एक्स टी को राइट पर्पज के लिए खोल लिया, सो ये डब्ल्यू में है। तो एफ पी वन से किसको हम हैंडल कर रहे हैं, रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी को, जिसमें से एक एक करेक्टर रीड करना है। एफ पी टू से वी आर हैंडलिंग कॉपी डॉट टी एक्स टी इन विच वी हैव टू राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो इसीलिए कॉपी हो जाएगा रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी की वैल्यू कॉपी डॉट टी एक्स टी में। तो अब देखें, सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि रीड डॉट इनमें से दोनों में से कोई नल तो नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी नल है तो हम इसको प्रोग्राम को एब्रप्टली टर्मिनेट कर देंगे। ठीक, फिर देखें यहाँ से अब करेक्टर बाई करेक्टर उठा रहे हैं, तो वही वाली कंडीशन है वाइल वाली, सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी वन और दैट इज नॉट इक्वल टू ए ओ एफ। तो एफ पी वन से रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी से करेक्टर बाई करेक्टर रीड कर रहे हैं। पहला करेक्टर रीड किया, सपोज वो ए था, ई ऑफ नहीं था, तो उसी रीड किए हुए करेक्टर को एफ पी टू की हेल्प से कॉपी डॉट टी एक्स टी में राइट कर दिया जाते। ठीक, कॉपी डॉट टी एक्स टी में राइट कर दिया, एक एक करेक्टर को रीड कर रहे हैं उसमें से, किसमें से, रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी से। एफ पी वन की हेल्प से रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी से एक एक करेक्टर उठाकर सी एच में डाल रहे हैं। कंडीशन ट्रू है, वो एंड ऑफ फाइल नहीं है। जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिले तब तक ये करेक्टर उठाकर सी एच में डालते रहो बारी बारी से। जिस करेक्टर को उठाया है उसी करेक्टर को एफ पी टू की हेल्प से कॉपी डॉट टी एक्स टी में राइट कर दिया जाए। ठीक, तो सारे करेक्टर्स कॉपी हो जाएगी इस तरह से। ये दोनों फाइल्स को क्लोज कर दिया। चलिए रन करके दिखा देते हैं इसको आपको। तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं, उसी में कर देते हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी से। ये फाइल यहाँ पर बनाई एफ पी वन एफ पी टू, ये देख ले कहीं पर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये हमारा रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी है। ठीक, रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी हमने सबने ये देखा हुआ है। रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी को एक बार फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी में है, ये सब उठा करके कॉपी डॉट टी एक्स टी में डालना है। तो कॉपी डॉट टी एक्स टी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो राइट मोड में खोला है, इसको ये कंपाइलर खुद क्रिएट कर लेगा
और अगर ऑलरेडी होगी और उसमें कुछ लिखा होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, और जो भी कोई रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी में वो कॉपी डॉट कॉपी हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फाइल कॉपी सक्सेसफुली, मैसेज आ चुका है। ठीक, तो अब हमें नोट पैड पे जाकर ये खोलना पड़ेगा कि कॉपी डॉट टीएक्सटी में क्या है। ठीक है, कॉपी डॉट टीएक्सटी में वही होना चाहिए जो रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी में है। तो रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी सबको दिख रहा है, मैं इसी में खोलूंगा कॉपी डॉट टीएक्सटी। तो फाइल ओपन कॉपी डॉट टीएक्सटी, ये मिल गया, ओपन कर देते हैं। ये देखिए सेम चीज है, वही जो रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी में थी वही सेम चीज कॉपी डॉट टीएक्सटी में आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइल हैंडलिंग के थ्रू एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी कर लिया है, और वो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी किया है। यहाँ पर आप किसी भी तरह का नोटपैड पर या एडिटर पर लिखा हुआ प्रोग्राम कॉपी कर सकते हैं। अब मान लिया हमने यहाँ पर एक, मैं चेंज करता हूँ, अभी रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी है, इसकी जगह पर हम एक दूसरा प्रोग्राम उठा लेते हैं, कोई आसान सा प्रोग्राम, जैसे ये फाइल अंडरस्कोर गेट्स, फाइल अंडरस्कोर एफ गेट्स डॉट सी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल अंडरस्कोर एफ गेट्स डॉट सी है, ये सी, तो ये डॉट सी है। थोड़ा सा प्रोग्राम मॉडिफाई किया, सोर्स फाइल को चेंज कर दिया। कॉपी डॉट टीएक्सटी अभी वही है, तो कॉपी डॉट टीएक्सटी अभी आपको तो पुराना वाला दिखा रहा है कंटेंट इसमें, जो रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी से हमने लिया था। अब हमें फाइल अंडरस्कोर एफगेट्स डॉट सी, ये फाइल खोलनी है, फाइल अंडरस्कोर एफगेट्स डॉट सी, उसमें ये सब है ना, ये देख रहे होंगे आप, एफगेट्स और पी एफगेट्स, सी प्रोग्रामिंग की एक फाइल है, एर एस टी आर 50। अब यही चीज हम उसमें कॉपी कर देंगे, तो जो हमारे पास कॉपी डॉट टीएक्सटी दिख रहा है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं जिसमें हम फाइल को उठा रहे हैं। तो इसको एग्जीक्यूट किया, फाइल को कॉपीड मैसेज आ गया है, सक्सेसफुली कॉपी होने का मैसेज आ गया, मैसेज को तो ठीक है। अब रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी की जगह अब कॉपी डॉट टीएक्सटी को दोबारा से खोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये पुराना वर्जन खोला हुआ है। कॉपी डॉट टीएक्सटी को फिर से खोलते हैं, ओपन कॉपी डॉट टीएक्सटी। तो देखिए कॉपी डॉट टीएक्सटी में वो प्रोग्राम आ गया। तो फाइल अंडरस्कोर एफगेट्स डॉट सी में क्या फाइल थी, ये वाली फाइल थी, यही चीज सेम कॉपी डॉट टीएक्सटी में आ गया है। ठीक, ये वाली प्रोग्राम कॉपी डॉट टीएक्सटी में आ गया, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इस फाइल को नेम दे दिया था अनटाइटल्ड वाले में, फाइल अंडरस्कोर एफगेट्स डॉट सी। तो ये डॉट सी फाइल नोट पैड में आ गई है, कॉपी हो गई। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब काम होने के बाद एफ क्लोज भी कर दिया है। फाइल कॉपी करने का एक तरीका यहाँ पर भी है, जो अभी बताया ना, नॉट एफ यू एफ एफ पी वन करके एक एक करेक्टर सी एच में डालते जाए, फिर सी में फिट कर सेव करते जाइए। तो यहाँ पर भी मैंने वही कर रखा है। तो बस वही चेंज हुआ है खाली कि वो ई ओ एफ की एग्जिस्टेंस को ढूंढने का तरीका फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। एफ यू एफ इज अ फंक्शन which returns true if end of file is obtained, it returns false if end of file is not obtained। और ऑटोमेटिकली आगे कैसे बढ़ेगा, विद द हेल्प ऑफ एफ गेट सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे फंक्शंस पढ़ते हैं और फिर उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो फंक्शंस और हैं, गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू। ये इंटीजर डेटा को रीड करने के लिए है। ठीक है, अगर कहीं पर आपके किसी फाइल में सिर्फ इंटीजर डेटा लिखा हो तो ये उसको रीड कर लेगा। इंटीजर को रीड करने के लिए गेट डब्ल्यू, और पुट डब्ल्यू से इंटीजर डेटा को राइट किया जाएगा। ये गेट सी और पुट सी की तरह ही है, बट ये सिर्फ इंटीजर डेटा पर वैलिड है।
जैसे ये प्रोग्राम है यहाँ पर डेटा डॉट डॉक WB इस तरह से दिया हुआ है। डेटा डॉट डॉक में से इन्होंने बाइनरी मोड में उठा रखा है और इंटीजर्स को रीड कर रहा है। ठीक, ये चीज़ मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये सब आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल यू हैव टू पे अटेंशन। तो गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू यूज कर रहे हैं स्वैपिंग करने के लिए। ठीक है, तो बबल सॉर्ट का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बबल सॉर्ट एवरीबडी नोज पेयर वाइज कंपेयर करते हुए आगे बढ़ता है, पहले एलिमेंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, जो भी कुछ आउट ऑफ ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं रिजल्ट में। इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, इफ एनी पेयर इज आउट ऑफ ऑर्डर, देन स्वैपिंग विल बी डन। और जितने एलिमेंट्स होंगे उससे एक कम नंबर ऑफ पासेज होंगे। फर्स्ट पास के बाद पहला टर्म हाईएस्ट प्लेस पर आ जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी प्लेस पर आ जाएगा, फिर सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट अपनी प्लेस पर आने का मतलब है कि वो लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको सबसे लास्ट में होना चाहिए अरे में। तो डबल सॉर्ट है ये। बबल सॉर्ट में स्वैपिंग फंक्शन यूज होता है क्योंकि स्वैप करना पड़ता है, और ये बबल सॉर्ट है। ठीक, तो ये तो पुरानी चीज हो गई। फाइल हैंडलिंग कहाँ पर है ये देख रहे हैं। तो इसमें देखिए टेस्ट डॉट टी नाम की एक फाइल है, उसको हमने राइट मोड में ओपन किया है। ठीक, और हमारे पास यूजर ने कोई डेटा डाला हुआ है ऑलरेडी। कौन सा डेटा है ये? IJK। ठीक है, एक तो ये है। इसमें एक्चुअली दो प्रोग्राम करे हुए हैं। तो पुट डब्ल्यू की हेल्प से आई को पहले टेस्ट डॉट टी में डलवाया, जे को टेस्ट डॉट टी में, और के को, तीन एलिमेंट्स इसमें डाल दिए। ठीक है, और FP की हेल्प से टेस्ट डॉट टी को रीड मोड में खोला फिर, और एक एक इंटीजर उठाकर एक एरे में डाल दिया, एरे बना दिया ARC नाम का। तो देखिए पहले तो हमने तीन इंटीजर लिए और उनको पुट डब्ल्यू की हेल्प से फाइल में रीड किया, सॉरी फाइल पे राइट किया। तो टेस्ट डॉट टी में तीन इंटीजर गए। अब मैं यहाँ पर इंटीजर्स को जरा चेंज करता हूँ और आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा। तो मान लिया हमारे पास अभी तीन इंटीजर हैं, आप तीन की जगह 10 भी ले सकते हैं, वो तो वहाँ पर आप लूप चला करके यूजर से वैल्यू ले लीजिए। लूप चला के वैल्यू ले लीजिए और FP में डालते चले जाइए। तो डब्ल्यू में आई कॉमा FP किया है, जे कॉमा के किया है, तो यहाँ पर हम पूरा एरे भी ले सकते हैं। एक एरे में यूजर से नंबर लीजिए और उसको नोटपैड वाली फाइल में एक एक इंटीजर पुट डब्ल्यू से डाल दीजिए। ठीक है, जैसे IJK कर सकते हैं, तो एक एरे ले सकते हैं, उसमें से हम AR0 AR1 AR2 इनको FP में डाल दें लूप लगा करके। ठीक, अब मैं यहाँ पर देखिए 0 है तो इसको कर देता हूँ सपोज 6 नहीं 61 कर देते हैं। 61 11 और 222 और K इज इक्वल टू, सॉरी जो जो था वो C जो है अलग चीज है, C काउंटर है। तो 11 222 K 31। ठीक, जब इसको आप रन करेंगे तो सबसे पहले test.txt एक नोटपैड पर फाइल खुलेगी। नोटपैड पर एक फाइल होगी test.txt। चलिए मैं पहले देख लेते हैं test.txt में क्या है। फाइल ओपन टेस्ट test.txt ओपन किया इसको। हाँ, एक बात और है, ये जो आपकी फाइल होगी जब इसको आप ओपन करेंगे, जो कि हमारा गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू से है, तो वो यहाँ पर इसको करेक्टली नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए पहले तो हमें इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट कर दें यहाँ से। मान लिया हमने एक बार इसको एग्जीक्यूट कर दिया। डेटा इन टेस्ट डॉट सी फाइल इज, ये दिखा रहा है C इज इक्वल टू 0, डेटा इन टेस्ट डॉट सी। ठीक है, फिर फाइल test1.txt में गया होगा डेटा सॉर्ट होकर के। देखते हैं यहाँ पर।
test1.txt. test.txt से अगर हम रीड कर रहे हैं तो test.txt में पहले कुछ होना चाहिए. test.txt यहाँ पर है. इसको W मोड में ओपन किया है FP की हेल्प से. तो IJK को हमने यहाँ पर इसमें डाला है. जरा नेम बदल दे. डली हुई वैल्यू को यहाँ पर रीड कर रहे हैं, एक एक इंटीजर, और एरे बना रहे हैं. ठीक है. जब एरे बन गया तो उसको बबल सॉर्ट में पास कर दिया सॉर्टिंग के लिए. जब वो एरे सॉर्ट कर दिया बबल सॉर्ट ने, तो एक बार फिर से FP1 पे जाकर उसको लिख दिया. सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि printf भी बताना पड़ेगा. बट यही टास्क है इसका, एफ गेट डब्ल्यू और एफ पुट डब्ल्यू और गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू का. अगर हमें नंबर ऑफ वर्ड्स ढूंढने हैं किसी फाइल में, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो इस फाइल को ओपन करें रिकॉर्ड डॉट टी को, और यहाँ पर एल्स पार्ट में आ जाए फाइल, जब तक कैरेक्टर नल नहीं हो जाता, और जितने भी स्पेस है और स्लैश एन है उनकी काउंटिंग कर दे तो नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे. ठीक. क्योंकि अगर हमने लिखा है सपोज कि गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, एक लाइन लिखी है, सो गुड मॉर्निंग, गुड और मॉर्निंग के बीच में गैप है अगर, तो एक वर्ड गुड हो गया. मॉर्निंग के बाद एक गैप है तो एक मॉर्निंग हो गया. इस तरह से जितने गैप होंगे उतने वर्ड्स मिल जाएंगे. और अगर मल्टीपल लाइंस में लिखा हुआ है एंटर मार मार करके, तो हमें अगली लाइन में फिर देखना होगा. तो जब भी लाइन चेंज होगा फिर नया वर्ड मिल जाएगा. सो वर्ड्स का काउंट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा.